Characteristics of entrepreneurship: ability to clinch the opportunity in the market, effective planning and execution, have knowledge of finance and management, initiating to achieve quality and customer satisfaction, bring positive change in the environment, create opportunity for employment to others, adaptable and flexible, having risk, creative in nature, having new ideas and innovation for better future। उद्यमिता के लक्षण: बाजार में अवसर हासिल करने की क्षमता, प्रभावी योजना और निष्पादन, वित्त और प्रबंधन का ज्ञान हो, गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए पहल करना, पर्यावरण में लाएं सकारात्मक बदलाव, दूसरों को रोजगार के अवसर सृजित करें, अनुकूलनीय और लचीला होने का खतरा, प्रकृति में रचनात्मक, बेहतर भविष्य के लिए नए विचारों और नवाचारों का होना। एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप: Entrepreneurs are their own boss and work together, achieving profits by satisfying the needs of customer and economy. Working hours are flexible and nobody question on our working hours. More profit and more risk. Enjoy the profession as their hobbies. उद्यमिता का लाभ: उद्यमी अपने स्वयं के मालिक होते हैं और ग्राहक और अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करके लाभ प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। काम के घंटे लचीले हैं और कोई भी हमारे काम के घंटों पर सवाल नहीं उठाता। अधिक लाभ और अधिक जोखिम शौक के रूप में पेशे का आनंद लें। Disadvantage of entrepreneurship: Entrepreneurship offers no guarantees regarding regular salary. Entrepreneurs have to change their product according to customer request. Unpredictable schedules of work. उद्यमिता का नुकसान: उद्यमिता नियमित वेतन के संबंध में कोई गारंटी नहीं देती है। उद्यमियों को ग्राहक के अनुरोध के अनुसार अपना उत्पाद बदलना होगा। काम के अप्रत्याशित कार्यक्रम। Wage employment: The employers are the owner and the workers are the employees. They have fixed salary, having fixed working hours, no financial risk, having defined working hours and leaves. Get job on the behalf of talent and skill. मजदूरी रोजगार: नियोक्ता मालिक हैं और कर्मचारी हैं, उनका वेतन निश्चित है। काम के घंटे निश्चित होना, कोई वित्तीय जोखिम नहीं। काम के घंटे और छुट्टी को परिभाषित करने के बाद प्रतिभा और हुनर के दम पर नौकरी पाएं। Services business: In this type of business do not provides physical products but pay for different services. Here service cannot be seen but experienced and customers pay for an experience. It cannot be transported. It quantity and quality were varying time to time. The services are physical, aesthetic and intellectual. Example are salon, schools, hotels. इस प्रकार के व्यवसाय में भौतिक उत्पाद प्रदान नहीं करते बल्कि विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। यहाँ सेवा को देखा नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है और ग्राहक एक अनुभव के लिए भुगतान करते हैं। इसे परिवहन नहीं किया जा सकता है, इसकी मात्रा और गुणवत्ता समय समय पर बदलती रहती थी। सेवाएं भौतिक, सौंदर्य और बौद्धिक हैं। उदाहरण सलून, स्कूल, होटल हैं। प्रोडक्ट बिजनेस: It is of two types of product-based business. Manufacturing business buys raw materials with intention of using them as materials in making a new finished product and sold to other manufacturers or customers directly. Example car, furniture, textile. निर्माण व्यवसाय: कच्चे माल को एक नया तैयार उत्पाद बनाने में सामग्री के रूप में उपयोग करने के इरादे से खरीदता है और अन्य निर्माताओं या ग्राहकों को सीधे बेचा जाता है। उदाहरण कार, फर्नीचर, कपड़ा। ट्रेड बिजनेस: buy products at wholesale price and sells the same at retail price and earn profit by selling at high rate as compared to purchased costs. Example is grocery stores. व्यापार थोक मूल्य पर उत्पाद खरीदें और उसे खुदरा मूल्य पर बेचें और खरीदी गई लागतों की तुलना में उच्च दर पर बेचकर लाभ अर्जित करें। उदाहरण किराना स्टोर है। हाइब्रिड बिजनेस: This business provide both selling product and services. It follows traditional method and technology in order to expand their business. Example is e-commerce. यह व्यवसाय बिक्री उत्पाद और सेवाएं दोनों प्रदान करता है।
यह अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए पारंपरिक पद्धति और तकनीक का अनुसरण करता है। उदाहरण ई कॉमर्स है। फॉर्म ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सोल प्रोप्राइटरशिप। It is a business owned by only one person, manages and control and the recipient of all the profit and losses, easy to set up at least cost. It not governed by any law. Example is saloon beauty parlors. यह केवल एक व्यक्ति के स्वामित्व वाला व्यवसाय है जो प्रबंधन और नियंत्रण करता है और सभी लाभ और हानियों को प्राप्त करता है। कम से कम लागत पर स्थापित करना आसान है। यह किसी कानून द्वारा शासित नहीं है। उदाहरण है सलून ब्यूटी पार्लर। पार्टनरशिप। It come into existence through legal agreement according to the terms and condition governing the relationship among the partners. Sharing of profit and losses and conducting business are specified by the partners only. Minimum number of partner is 2 to start a business. यह भागीदारों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार कानूनी समझौते के माध्यम से अस्तित्व में आता है। लाभ और हानि का बंटवारा और व्यवसाय का संचालन केवल भागीदारों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। व्यवसाय शुरू करने के लिए साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर फॉर एनी पर्पज। It have minimum 10 members in it. Follows the Cooperative Societies Act 1912. There is no compulsion to join or quit the society. Power of decision making comes under the hand of managing committee. सहकारी समितियां। सहकारी का अर्थ है किसी भी उद्देश्य के लिए एक साथ काम करना। इसमें कम से कम 10 सदस्य हों। सहकारी समिति अधिनियम 1912 का पालन करते हैं। समाज में शामिल होने या छोड़ने की कोई बाध्यता नहीं है। निर्णय लेने की शक्ति प्रबंध समिति के हाथ में आती है। कॉर्पोरेशन। It considered as separate entity from its owners called as shareholders. They have limited liability but have limited involvement in company operations. Board of Director control the activities of the corporation. यह अपने मालिकों से अलग इकाई के रूप में माना जाता है जिन्हें शेयरधारक कहा जाता है। उनके पास सीमित देयता है लेकिन कंपनी के संचालन में सीमित भागीदारी है। निदेशक मंडल निगम की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दिस बिजनेस इज कैरीड आउट बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, which is governed by Hindu law. This is the oldest form of business found in India only. यह व्यवसाय हिंदू अविभाजित परिवार HUF द्वारा किया जाता है जो हिंदू कानून द्वारा शासित होता है। यह केवल भारत में पाया जाने वाला व्यवसाय का सबसे पुराना रूप है। स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। आइडिया जनरेशन। डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस प्लानिंग। प्रोजेक्ट इनिशिएशन। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। व्यापार शुरू करने के लिए कदम। आइडिया जनरेशन। निर्णय लेने और व्यवसाय योजना। परियोजना का प्रारंभ। प्रबंधन और नियंत्रण। वीडियो अच्छी लगी